Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study nuclear fission. Now start the lecture and understand. See, to understand nuclear fission and nuclear fusion we need to know about nucleus and radioactivity. So firstly we will study nucleus, then radioactivity. After that we will understand nuclear fission. Right? So now understand what is nucleus. See, the condensed central part of the atom is known as nucleus, and nucleus contains almost all positive charge of the atom, and nucleus contains almost all the mass of the atom, and we get this information through Rutherford's scattering experiment. See, in the previous lecture we have studied the atomic models, right? And firstly J.J. Thomson, right? J.J. Thomson presented the water-lemon model of the atom. According to J.J. Thomson, atom is spherical, rigid. Atom is spherical, rigid body, right? And the positive charge is uniformly distributed in the atom, and the negative charge, or we can say that electron are dispersed in this uniformly distributed positive charge, like the seed of water lemon. For an example, right, this is the edible portion, right? This is the रेड ईडेबल पोर्शन ऑफ द वाटर लेमन, और इसमें जैसे सीड्स क्या होते हैं, डिस्वर्स्ड होते हैं, उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, राइट? सो इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आर dispersed in the positive charge like seed of the water lemon, right? So the red edible portion is the uniformly distributed positive charge, and the negative charge, or we can say that electron are like the seeds of water lemon. Therefore this model is also known as the water lemon model of J.J. Thomson, right? But there were drawbacks in the J.J. Thomson model, right, which were removed by Rutherford, right? After that Rutherford presented its solar system model, right? Solar system model, और Rutherford ने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. कौन सा किया था? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट Rutherford प्रोवाइडेड द थ्योरी दैट कि जो एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और एटम का जो मास होता है वो इसमें ही क्या रहता है, कंटेन रहता है. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू Rutherford the condensed central part of the atom is the nucleus, and nucleus contains all the positive charge. अब न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज को रखता है. क्यों? बिकॉज ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो चूंकि जो सभी प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इन न्यूक्लियस. साथ ही साथ चूंकि न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इसी वजह से जो एटॉमिक मास है वह भी किस में कंटेन होता है, न्यूक्लियस में ही कंटेन होता है, राइट? साथ ही साथ रदरफोर्ड ने ही बताया था द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power minus 15 मीटर, वेयर एज द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power 10 मीटर. इसका मतलब ये हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 15 मीटर, राइट? और चूंकि वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियस through Rutherford's scattering experiment, therefore Rutherford is known as the father of nuclear physics, right? तो यहाँ पर सीधी सी जो है डेफिनेशन अगर न्यूक्लियस की लिखें तो हम सीधा कह सकते हैं, right? The condensed central part of the atom is known as nucleus, and nucleus contains all the positive charge of the atom. Also almost all of the mass of the atom is known as nucleus,
राइट। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, राइट। एंड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, देयरफॉर रदरफोर्ड इज नोन एज फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स, right? And difference between the radius of nucleus and radius of atom is 10 to the power 15, and radius of the atom is 10 to the power minus 15 meter, right? अब मैं आपको बताना चाहूं तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ही जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किस में? ऑर्बिट्स में, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होती हैं उसमें ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। ये पार्टिकल्स किस में? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब न्यूक्लियस जो है स्टेबल होता है, उसका रीजन क्या है? द रीजन फॉर दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, राइट। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द फोर्स which binds the particles present in the nucleus and provides stability to the nucleus is called strong nucleus force, right? तो एटम के न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल होते हैं, स्पेशली अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन्स, राइट, उनको जो फोर्स बांधे रखता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, राइट। इसके अलावा जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में, अब देखिए आपको पता होगा कि जो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव, चूंकि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इनके ऊपर एक समान पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि जैसे एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन, इन दोनों का जो चार्ज है वो लगभग समान होता है। देयरफॉर रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, राइट। और जो न्यूक्लियस है वो तभी स्टेबल होगा जब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्स, राइट। यदि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? नाभिक से बाहर आ जाएंगे, राइट। और अगर न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस फोर्स है वो अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रोटॉन्स है उनको क्या रखेगा? बांधे रखेगा, राइट। तो यहाँ पर आप ये दो चीज़ें समझना जो कि रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फोर्स विच बाइंड्स द पार्टिकल्स, राइट, the force which binds the particles present in the nucleus and provides stability to the nucleus is called strong nucleus force, or we can say that nuclear force. And the repulsive force acts between the protons because protons के ऊपर चार्ज लगभग क्या होता है? समान रहता है। तो because of the same positive charge repulsion force acts between the two protons and द स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर फोर्स, राइट। देखिए इफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? स्टेबल रहेगा। बट यदि रिपल्सिव फोर्स यदि क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो यदि क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में कम हो जाता है, तो फिर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। एंड इसी वजह से जो है स्टेबिलिटी क्या होती है? डिपेंड करती है, राइट। तो जैसा कि हमने अभी समझा, राइट, the neutrons and protons in the nucleus of an atom are in the same number, that is ratio of 1/1, then atom is stable. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि, राइट, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि सेम जो है रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, राइट, अर्थात जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में यदि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो 1/1 है तो वह क्या होगा? स्टेबल होगा। परंतु यदि प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी।
प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो रिपल्सन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यदि रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा तो उनके बीच में जो लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स एंड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, राइट। पहली कंडीशन क्या है, इफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम आर इन द सेम नंबर, दैट इज उनका जो रेशियो 1/1 है, तो जो न्यूक्लियस है वो मोस्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। बट इफ नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स रिलेटिव टू प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, यदि न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की तुलना में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। और यदि यह जो रेशियो है, दिस रेशियो एक्सीड्स 1.5, देन न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। उसका कारण क्या है, राइट। जैसे ही ये रेशियो 1.5 हो जाएगा तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। एंड टू गेट द स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस जो है रेडिएशन को इमिट करता है, राइट। एंड जो मैटर है, जिस भी मैटर का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हो जाएगी रेडिएशन को समझने के लिए और रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए। तो यदि एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1/1 है तो एटम स्टेबल होगा। यदि न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की तुलना में इंक्रीज होती है तो जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, राइट। और जब ये रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सिव जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, और उस पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव कहा जाता है, राइट। प्रेजेंटली नॉन एलिमेंट्स आर 118, और यदि जो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं इनमें से एलिमेंट्स राइट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 82 होता है, राइट। तो 82 जिनका एटॉमिक नंबर होता है उसके बाद से ये जो रेशियो है ये 1.5 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी वजह से द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उनको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, राइट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप एक फैक्ट और याद रखें, राइट। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन 82, यदि प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, 82 से ज़्यादा होती है, तो उनका रिपल्सिव जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, और जो भी न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 82 से ज़्यादा है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उनको ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी को भी जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को समझ चुके हैं। अब रेडियो एक्टिविटी की अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो हम उसको सीधी सी जो है सिंपल शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट होज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 82, क्योंकि यदि एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा तभी उस एटम के प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, और वो एटम या वो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। सो इन एलिमेंट्स whose atomic number is more than 82, the repulsive force between protons is greater than the nuclear force. The nucleus of such elements are not stable, or we can say that unstable, and continuously emits the rays, right, called alpha, beta and gamma rays to achieve stability, right. And such elements are called radioactive elements, and this process is called radioactivity. तो इसको ही क्या कहा जाता है, रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। तो एटॉमिक, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 82 से ज़्यादा है, उनमें प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो
न्यूक्लियस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा। एंड टू अचीव द स्टेबिलिटी, जो एटम है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, अल्फा बीटा एंड गामा रेस को जो है एमिट करता है। इसको ही क्या कहा जाता है, उस एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय हेनरी बेक्यूरेल। आफ्टर दैट हेनरी बेक्यूरेल, मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, राइट, इन तीनों ने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो है स्टडी की थी, राइट, और 1898 में एक कंक्लूजन को उपलब्ध कराया था, और वो ये था कि यूरेनियम के अलावा भी ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, राइट। सो देयर आर मेनी अदर सब्सटेंसेस इन विच रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा। क्लियर? So we have studied the radioactivity. Now we will study transmutation. Right? Transmutation क्या होता है? The conversion of one element to another element is called transmutation. Right? So the conversion of one element to another element is known as transmutation. राइट, और जो ट्रांसम्यूलेशन की प्रॉपर्टी होती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में पाई जाती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो हमेशा रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है। और इसी की वजह से जो ट्रांसम्यूलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो किन में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में पाई जाती है। और सेडी वाज द फर्स्ट, right, Sedi was the first to state that emissions of Becquerel rays, right, like alpha, beta and gamma rays is the result of the transformation of unstable nucleus into stable nucleus, और उसी की वजह से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो फॉर्म बनते हैं। तो सेडी ने यही, जो सेडी वाज द फर्स्ट टू स्टेट कि जो एमिशन होता है किनका, अल्फा बीटा गामा रेस का, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस स्टेट को अचीव करने के लिए ही जो वैक्यूरल रेस हैं उनको एमिट करता है। तो जो वैक्यूरल रेस हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, अल्फा बीटा एंड गामा रेस। इन द एग्जामिनेशन 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट, अबाउट अल्फा रेस, या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बीटा रेस, राइट, क्योंकि न्यूक्लियर का फिशन इनडायरेक्टली रेडियो एक्टिविटी से भी है, और रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेस जो है पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देयरफॉर जो है यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वैक्यूरल रेस, राइट, व्हाट आर द वैक्यूरल रेस, राइट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्यूरल रेस। These question may be asked as a 11 marker question. So we will study one by one. At first alpha rays, right, alpha rays. So these rays are made up of very fine charged particle with positive charge. तो जो अल्फा रेज है वो वेरी फाइन चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ या पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, राइट। सो दीज रेज आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन चार्ज पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाता है सो दीज रेज टर्न्स टुवर्ड नेगेटिव, क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तीनों जो रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, इन सब में जो सबसे कम पेनिट्रिंग पावर होती है वो अल्फा रेज की होती है, और साथ ही साथ दीज रेज डिस्ट्रॉय द सेल्स, राइट, इन लेस, राइट, बहुत ही लेस अमाउंट में ये लिविंग सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, राइट। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो अल्फा रेज होती हैं, अल्फा रेज आर द लेस हार्मफुल फॉर द लिविंग सेल्स, और वहीं जो गामा रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। आफ्टर दैट बीटा रेज, तो बीटा रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं। सो बीटा रेज आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज। तो अल्फा जो रेज होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई होती हैं, राइट, एंड जो बीटा रेज हैं, बीटा रेज आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल विद नेगेटिव
चार्ज। और जब बीटा रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाता है तो ये पॉजिटिव पोल की ओर क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, राइट। इनकी जो पेनिट्रिंग पावर होती है दैट इज हायर देन अल्फा रेस, राइट, परंतु गामा रेस से क्या होती है, कम होती है। और ये रेस भी जो है लिविंग सेल्स को क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आफ्टर दैट थर्ड हो जाएंगी जो है गामा रेस, राइट। जो गामा रेस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जो गामा रेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती हैं और इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाता है तो ये ना तो पॉजिटिव पोल की तरफ ना ही नेगेटिव पोल की तरफ बेंड होती हैं। इसका मतलब दीज रेस डू नॉट डेविएट व्हेन पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनकी जो पेनेट्रिंग पावर होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। द पेनेट्रिंग पावर ऑफ दीज आर ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा रेट एंड बीटा रेस। साथ ही साथ ये लिविंग सेल को, राइट, लिविंग सेल को क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और एक तरीके से जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको भी क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। इसीलिए जो अल्फा रेडिएशन या बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन, तो इसमें से जो गामा रेडिएशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, राइट, क्योंकि ये अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है और जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। अब हम इसी से मिलता जुलता एक और यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का जो है टॉपिक पढ़ते हैं, राइट। देयर में भी चांसेस दैट 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। तो हाफ लाइफ पीरियड की सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट। देखिए, the time period in which half of the atoms present in the radioactive substance are decomposed or decayed at a particular time is called the half life of that element, right। तो किसी भी एटम में, right, किसी भी सब्सटेंस के एटम में जो जितने भी, right, जितने भी जो हाफ एटम्स, राइट, जैसे मैंने कहा कि ये एक एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स में से आधे एटम्स, राइट, आधे एटम्स जो हैं जितने समय में क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, उसको क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। सो द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर डिकम्पोज्ड। तो हाफ ऑफ द एटम्स किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में जितने समय में डिकम्पोज हो जाते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट कहा जाता है। और ये प्रत्येक जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है उसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड इज डिफरेंट एंड फिक्स्ड फॉर ईच रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1950 ईयर्स। देन हाफ लाइफ पीरियड थोरियम का होता है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 18 ईयर्स। पोलिनियम का होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 14 सेकेंड्स। और यूरेनियम 238 का होता है 4.46 मिलियन ईयर्स। क्लियर? सो वी हैव स्टडीड इन डेप्थ अबाउट न्यूक्लियस, about radioactivity, right? Now we will study nuclear fission. देखिए, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ अ लार्ज और हैवियर न्यूक्लियस इनटू मोर देन 2 स्मॉलर एंड क्या हो जाएगा, लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फिजन। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लार्जर और हैवियर न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, लार्जर न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें मोर देन 82 क्या होना चाहिए, प्रोटॉन्स होना चाहिए, राइट। तो यदि मोर देन 82 प्रोटॉन्स होंगे तो उसको ही लार्ज, या फिर मास में वो क्या होगा, हैवियर होगा, राइट। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम में मोर देन 82 क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनको ही लार्जर या हैवियर न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जब लार्जर या हैवियर न्यूक्लियस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर अगर बॉम्बार्डिंग की जाए तो उन एलिमेंट्स का जो एटम होता है, राइट, उन
एलिमेंट्स के जो लार्ज और हैवियर न्यूक्लियस होते हैं वो स्मॉल और लाइटर न्यूक्लियस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस फिशन कहा जाता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट। The splitting of a large or heavier nucleus into more than two smaller or lighter nucleus is called as nuclear fission। अब देखिए यहां पर पहली चीज, ये जो न्यूक्लियर फिशन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो दोज एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है उनका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। और स्टेबल होने की वजह से यदि उन पर बम्बार्डिंग की जाएगी न्यूट्रॉन्स की तो उनका न्यूक्लियस जो है स्प्लिट नहीं होगा। परंतु ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मोर देन क्या होते हैं, 82 प्रोटॉन्स होते हैं, तो यदि मोर देन 82 प्रोटॉन्स होंगे तो उन प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और यदि अनस्टेबल न्यूक्लियस में हम न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, राइट। तो in nuclear fission when neutrons are bombarded with medium spin on the nucleus of an atom, तो nucleus splits into two or more lighter and smaller nucleus। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता उन पर यदि न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाए तो उनका जो लार्ज और हैवियर न्यूक्लियस होता है वो मोर देन 2 स्मॉल और लाइटर न्यूक्लियस में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, राइट। एक चीज और हम यहां पर याद रखेंगे कि जब एक हैवियर और लाइटर न्यूक्लियस दो या दो से अधिक स्मॉलर या लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है तो इन दिस प्रोसेस जो थोड़ा सा मास है, राइट, वो भी क्या होता है, लॉस होता है। और वो जो मास है वो किस में, मास जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में, जो मास है वही किस में, एनर्जी में क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो जो मास है वही किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, और इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है, राइट। तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर फिजन इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहां पर समझिए, राइट, जैसे हम यहां पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। देखिए ये हो जाएगा यूरेनियम 92, यूरेनियम का ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा और ये एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाएगी तो ये जो है यूरेनियम 236 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यूरेनियम 236 जो है फिर दो लाइटर एंड स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाएगा। तो यूरेनियम 236 फिर जाकर किसमें, बेरिलियम 144, राइट, बेरिलियम 144 एंड क्रिप्टॉन 89 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, रिलीज होंगे, राइट। अब एक चीज और समझिए कि इसमें जो एनर्जी है वो कहां से आती है। तो देखिए यहां पर जो हैवियर जो न्यूक्लियस होता है, जैसे यूरेनियम 236 है, जब ये स्मॉलर दो न्यूक्लियस में टूटता है तो यहाँ पर कुछ मास का क्या होता है, लॉस होता है। और वही जो मास है वो आइंस्टीन के रूल के अनुसार E = mc² के अनुसार, राइट, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी इस प्रक्रिया में क्या होती है, रिलीज होती है, राइट, जिसको मैंने यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बता दिया। दिस इज यूरेनियम 235। जब इस पर एक न्यूट्रॉन की क्या होगी, बम्बार्डिंग होगी, तो ये यूरेनियम 236 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो है दो लाइटर, राइट, तो यूरेनियम 236 ये क्या हो जाएगा, हैवियर और लार्जर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये फिर लाइटर एक बेरिलियम 144 में और क्रिप्टॉन 89 जो है स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाएगा। साथ ही साथ 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियर जो फिशन की प्रक्रिया है उसको बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। उसको समझाने का
रीज़न ये है कि यू विल फाइंड डिफरेंट रिएक्शन इन डिफरेंट बुक्स, राइट। हो सकता है कहीं पर आप बेरिलियम 148 लिखा हुआ पाएंगे, या बेरिलियम 145 लिखा पाएंगे, या लैंथेनम लिखा पाएंगे। इसमें डिफरेंट क्या होता है, तो देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अलग अलग तरीके से न्यूक्लियर फिशन जो है कराया जाता है, और अलग अलग जो मेथड्स होती हैं उनकी वजह से जो अलग अलग जो है लाइटर और स्मॉलर जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो चारों के चारों एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूँ, इनमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये 4 के 4 याद रखो, आप इनमें से कोई भी 2 याद रख लो, बट यू नीड टू बी अवेयर कि ये चारों की चारों जो रिएक्शंस होती हैं और इन चारों के चारों में अलग अलग एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फिशन को अब हम यहाँ पर समझते हैं, राइट, एक प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया लिखी है कि जब यूरेनियम, राइट, देखिए जब यूरेनियम न्यूक्लियस को, राइट, यूरेनियम न्यूक्लियस को जो है न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, तो वह 2 लाइटर एंड स्मॉलर, मोर देन 2 लाइटर एंड स्मॉलर जो न्यूक्लियस है उसमें स्पिल्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 जो है ये यूरेनियम 238 स्पिल्ट होगा बेरिलियम 148 और क्रिप्टॉन 88 में, साथ ही साथ 3 जो न्यूट्रॉन हैं वो रिलीज होंगे। फिर यूरेनियम 235 में, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखा है, यूरेनियम 238 लिखा है, राइट। तो ये दोनों अलग अलग हैं। यूरेनियम 238 की ये प्रक्रिया हो जाएगी, यूरेनियम 238 होगा तो ये बेरिलियम 148 और क्रिप्टॉन 80 में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। यदि यूरेनियम 235 होगा और उस पर 1 न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे तो वो यूनिट जो है यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बेरिलियम 144, राइट, और क्रिप्टॉन 89 में टूटेगा और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे। फिर यूरेनियम यदि 235 को 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग की जाती है, राइट, तो ये सबसे पहले तो 236 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। फिर ये हो सकता है बेरिलियम की जगह पर लैंथेनम 148 में टूटे और ब्रोमीन 89 के रूप में, राइट। फिर यूरेनियम 235 को यदि 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करें तो वो 236 में कन्वर्ट होगा और हो सकता है ये जिनोन 140 और स्ट्रोंशियम 94 और साथ ही साथ 3 जो है न्यूट्रॉन इसमें रिलीज होंगे। तो ये 4 डिफरेंट क्या हो जाएंगी, रिएक्शंस हो जाएंगी। इनमें से आपको 2 रिएक्शंस जो है याद रखनी है। 2 रिएक्शंस मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि वेन एवर यू विल स्टडी अ बुक आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन का जो है, न्यूक्लियर फिजन, राइट, न्यूक्लियर फिजन का यूज क्या होता है, तो उस यूज को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर या जो न्यूक्लियर फर्नेंस होती है, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर फर्नेंस को न्यूक्लियर फिशन के आधार पर ही तैयार किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। साथ ही साथ कई जो आइसोटोप्स हैं वो भी फॉर्म किए जाते हैं, राइट। तो न्यूक्लियर फिशन का पहला प्रयोग तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फर्नेंस इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। सेकेंड हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फर्नेंस। और जो डेवलप्ड देश हैं, फॉर एन एग्जांपल रसिया है, रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, इन देशों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का होता है। वहीं इंडिया और चाइना ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगा, या कोल को जलाकर हम जो है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। परंतु जो डेवलप्ड देश है उनमें हाई जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो न्यूक्लियर प्लांट के माध्यम से ही जो है तैयार की जाती है, राइट। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर फिशन है उससे एटॉमिक बॉम्ब्स भी जो है बनाए जाते हैं, या न्यूक्लियर जो बॉम्ब है
वो भी किससे बनाया जाता है, न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। यही कारण है कि जो अमेरिका, राइट, अमेरिका इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, राइट, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, राइट, न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस से वी कैन जो है हम हाई मतलब न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से हम न्यूक्लियर रिएक्टर को बना सकते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर से हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं, परंतु इन द सेम वे हम जो है न्यूक्लियर या एटॉमिक बम भी बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उनसे आइसोटोप्स भी बनाए जाते हैं, जिनका मेडिकल फील्ड में कई डेडली डिसीजेस के ट्रीटमेंट में किया जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं चेन रिएक्शन, राइट। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब, राइट, यहाँ पर जो न्यूक्लियर फिशन है उससे बम भी बना सकते हैं और एनर्जी भी बना सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है? वो अंतर है चेन रिएक्शन का, राइट। देखिए, जो न्यूक्लियर फिशन की जो रिएक्शन होती है वो एक चेन रिएक्शन होती है, राइट। अंतर इतना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, राइट, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूक्लियर फिशन पर तो आधारित होता है, परंतु न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिशन की जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है। वहीं इसमें कंट्रोल्ड होती है, राइट, कंट्रोल्ड होती है, इसीलिए हम उसका जो है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसमें न्यूक्लियर फिशन की क्या होती है, अनकंट्रोल्ड क्या होती है, जो है अनकंट्रोल्ड चेन होती है। इसीलिए एग्जाम में यहाँ से जो है चेन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चेन रिएक्शन क्या होती है। चेन रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी तो फिर हम समझेंगे कि व्हाट इज द कंट्रोल्ड केमिकल, व्हाट इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और व्हाट इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। सो वी हैव अंडरस्टूड न्यूक्लियर फिशन, और न्यूक्लियर फिशन का हम इंपॉर्टेंस भी समझ चुके हैं या यूजेस भी समझ चुके हैं। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग चेन रिएक्शन। अब देखिए चेन रिएक्शन क्या होती है उसको समझना। देखिए, व्हेन अ न्यूक्लियर रिएक्शन मेक्स पॉसिबल वन और मोर अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ द सेम टाइप, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो वह न्यूक्लियर रिएक्शन जो अपने समान एक से अधिक जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनको प्रारंभ कर दे, उसको क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं, राइट। सो व्हेन अ न्यूक्लियर रिएक्शन मेक्स पॉसिबल वन और मोर अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ द सेम टाइप, देन दिस इज नोन एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, सेल्फ प्रोपोगेटिंग होती है और सेल्फ क्या होती है, सस्टेन्ड होती है। तो सेल्फ सस्टेन्ड होती है और सेल्फ क्या होती है, प्रोपोगेटिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस ऑफ क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235। और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब्स या न्यूक्लियर जो फर्नेंस हैं वह भी जो है चेन रिएक्शन के ही क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो चेन रिएक्शन क्या होती है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले यूरेनियम 235 को यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यूरेनियम 235 की जो चेन रिएक्शन उसको समझने के लिए ये सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 पे जब हम एक न्यूट्रॉन की क्या करेंगे, बम्बार्डिंग करेंगे, तो एक न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डिंग होगी तो वह जो है यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो यूरेनियम 236 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 236 है, ये स्प्लिट हो जाएगा स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियस में। तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा बेरिलियम 144 में और क्रिप्टॉन 89 में। साथ ही साथ ये क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन इसमें रिलीज होंगे, राइट। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये फिर क्या करेंगे, ये एक न्यूट्रॉन फिर से यही की यही प्रक्रिया को फिर शुरू कर देगा, अर्थात ये फिर जो है यूरेनियम 236 के 3 न्यूक्लियस को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ये फिर 3 को ब्रेक डाउन करेगा, ये फिर क्या होगा, 3 को ब्रेक डाउन करेगा। फिर ये जो न्यूट्रॉन होगा
इससे फिर कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ये फिर क्या करेगा, 3 को करेगा, ये फिर 3 को करेगा, ये फिर 3 को करेगा। मतलब एक न्यूट्रॉन से जो पहली रिएक्शन होगी उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 3। फिर ये जो 3 है ये फिर 9, 1 2 3, फिर ये 9 रिएक्शंस को शुरू कर देंगे। फिर ये जो 9 है ये 81 जो है न्यूट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और इस तरीके से जो रिएक्शन है वो हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी। तो ये जो है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो एक बार आपने राइट, यदि आपने एक बार यूरेनियम के राइट, यदि आपने एक बार यूरेनियम के न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग की तो उससे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। फिर ये वाला जैसे हमने कहा कि ये पहला जो न्यूट्रॉन है ये फिर 3 न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा, ये भी 3 न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा, ये भी जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, पहले न्यूक्लियर फिशन होगा और उसमें फिर 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। और इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो चलती रहेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाएगा, राइट। तो यही जो है पूरा पूरा यहाँ पर लिखा है कि शुरुआत में तो क्या होंगे, पहली बार जब न्यूक्लियर फिशन होगा तो 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ये आगे जाकर फिर फिशन, जो न्यूक्लियर की फिशन की प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे और 9 जो है न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फिर उसकी वजह से 81 जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और इस तरीके से ये जो चेन रिएक्शन है ये हमेशा चलती रहेगी। सो इन दिस वे जो चेन ऑफ द न्यूक्लियर फिशन है वो क्या होगी, कंटिन्यू जो है चलती रहेगी, राइट। तो ये यहाँ पर चेन रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। अब जो चेन रिएक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, राइट। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। देखिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसी चेन रिएक्शन जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सो सच अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी मीन्स, राइट, बाय एनी मीन्स, मतलब आप आर्टिफिशियल मीन्स से उसको जो है कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, राइट। सो सच अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी मीन्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स, राइट, that is neutrons continue to fission uranium further and further, and this reaction goes on very fast and which is very difficult to control, right. So such a nuclear fission reaction that cannot be controlled by any means, and that is neutron जो है वो continuously क्या होंगे, आगे जो है फिशन करते रहेंगे और ये प्रक्रिया जो है फर्दर से फर्दर चलती रहेगी। और इस तरीके से ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट जो है, दिस रिएक्शन गोज ऑन वेरी फास्ट, और इसीलिए इसको जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो द रिएक्शन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड उसको ही क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। अब जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट पेस पर होती है, या इसकी जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ ही समय में पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है, और इसमें लॉट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एटॉमिक बम हो जाएगा, राइट। तो एटॉमिक बम में क्या होता है, एटॉमिक बम का जो डेटोनेटर होता है, राइट, जैसे ही एटॉमिक बम के डेटोनेटर को जो डेटोनेटर शुरू होता है तो उससे न्यूट्रॉन की क्या होती है, बम्बार्डिंग होती है। फिर ये एक न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर फिशन करेगा और 3 जो न्यूट्रॉन है उनको क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर ये आगे जाकर, तो इस तरीके से जब न्यूक्लियर बॉम्ब में एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होगी तो उससे न्यूक्लियर फिशन होगा और 3 न्यूट्रॉन जो है रिलीज होंगे। फिर ये 3 जो न्यूट्रॉन है ये आगे, फिर जैसे इसका एक जो न्यूट्रॉन है ये फिर आगे न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा और 3 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस तरीके से बहुत ही कम समय में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, राइट, एनर्जी रिलीज होगी। हीट जो है एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट, बहुत तेज हवाएं चलने लग जाएंगी, राइट। अर्थात जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे ही क्या होता है, अनकंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शन है
वो एटॉमिक बम जो है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर ही जो है कार्य करता है। इसीलिए अब अंतर यही है कि देखिए जो न्यूक्लियर प्लांट होता है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर होता है, और यदि बाई चांस किसी वजह से यदि न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ खराबी आ जाए और जो चेन रिएक्शन वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो न्यूक्लियर प्लांट ही क्या बन जाएगा, एटॉमिक बम बन जाएगा, राइट। तो जो एटॉमिक बम होता है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर कार्य करता है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल्ड क्या हो जाएगा, चेन रिएक्शन हो जाएगा। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ है, देखिए पूरी कहानी हमको पता है। सबसे पहले डेफिनेशन में आपको बता दूं, राइट। सच आ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, राइट। तो सच अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियली मीन्स, उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा जाता है। अब हमें इतना पता है कि जब एक बार न्यूक्लियर फिशन होता है तो उसकी वजह से 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट। और इस वजह से बहुत ही ये जो प्रक्रिया है वेरी फास्ट, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही फास्ट हो जाती है, और इससे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। बट यदि हम किसी तरीके से 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, राइट। 2 न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो 1 न्यूट्रॉन बचेगा, फिर ये 3 को क्या करेगा, रिलीज करेगा, फिर हम 2 को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि ये जो चेन रिएक्शन है ये स्लो, जो चेन रिएक्शन होगी ये स्लो होगी, और दूसरी चीज इसमें अधिक से अधिक जो एनर्जी है वो एक साथ रिलीज नहीं होगी, जिसकी वजह से हम इसका कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा जाता है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय एक्सटर्नल आर्टिफिशियल मीन्स इन सच अ वे दैट ओनली 1 न्यूट्रॉन फर्दर fission the nucleus of the uranium and similarly 1 neutron further fission the uranium reaction, राइट। तो कुल मिलाकर जब हम 2 न्यूट्रॉन को एब्जर्व कर लें तो जो 1 न्यूट्रॉन है वो फिर न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, और इस तरीके से यदि हम इसको कंट्रोल करते हैं, राइट। और जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें बोरॉन और कैडमियम की क्या होती हैं, रॉड्स होती हैं। तो जो बोरॉन और कैडमियम की रॉड्स होती हैं वो जो 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स होती हैं उनको एब्जर्व कर लेती हैं। इसकी वजह से ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो पेस पर चलती है, और उस एनर्जी को जो है हम कंस्ट्रक्टिव जो है यूज़ के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी की वजह से जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स जो कार्य करते हैं वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर कार्य करते हैं, जिससे हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो न्यूक्लियर प्लांट होता है, राइट, न्यूक्लियर प्लांट, राइट, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है, जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, और जो एटॉमिक बम होता है उसमें क्या होती है, एटॉमिक बम में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। इसीलिए अगर जो अब आपने ये भी सुना होगा कि कई बार जैसे इंडियन गवर्नमेंट तमिलनाडु में कुंडनकुलम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहती है, बट वहाँ के जो लोकल पीपल आर अपोजिंग इट, व्हाई, बिकॉज दे न्यू कि बाई चांस किसी भी वजह से यदि ये न्यूक्लियर जो है रिएक्टर, राइट, इसमें कोई भी अगर गड़बड़ी आई तो ये एटॉमिक बम की तरह कार्य करता है। तो कुल मिलाकर एटॉमिक बम में जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, इसीलिए न्यूक्लियर फिशन बहुत ही कम समय में, ये जो होल प्रोसेस है वो कम समय में जो होती है संपन्न हो जाती है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट है वो जनरेट होती है, और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। जबकि न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, बोरॉन और कैडमियम की जो रॉड्स होती हैं उनसे जो 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जर्व किया जाता है, और आर्टिफिशियल तरीके से इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और इस वजह से फिर जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन के बारे में हमने बहुत अच्छी से समझ लिया है। हाँ, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर प्लांट पर आ सकते हैं, तो न्यूक्लियर प्लांट्स को हम बहुत ही डेप्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी को और समझते हैं, राइट। तो अभी हम जो है पढ़ चुके हैं कि देखिए जब किसी यूरेनियम पर, राइट, जब यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होती है, राइट, तो वह 236 में कन्वर्ट हो जाएगा और 236 में जब कन्वर्ट होगा तो वह लाइटर और स्मॉलर जो है न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। बट इसमें क्या होता है कि जो लार्जर और हैवियर न्यूक्लियस होता है वो जब मोर देन 2 स्मॉल या लाइटर न्यूक्लियस में जब स्प्लिट होता है तो उसमें मास का क्या होता है, लॉस होता है, मास इज लॉस्ट। और चूंकि हमको पता है, राइट, कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब जो मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। तो यही जो मास है वो एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसको अकॉर्डिंग टू E = mc² से हम समझ सकते हैं, राइट। तो जितना मास लॉस होता है वही इसमें एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी इज बून एज वेल एज कर्स फॉर अस, राइट। यदि न्यूक्लियर एनर्जी को हम नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा पाएँ तो वो हमारे लिए क्या है, बून है। बट यही न्यूक्लियर एनर्जी एटॉमिक बम के रूप में अगर हमारे सामने आए तो ये पूरे के पूरे शहर को या पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस तरीके से ये क्या होगी, कर्स होगी, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूक्लियस, देन रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन, देन जो चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, राइट। फिर एटॉमिक बम को हमने जो है पढ़ लिया है। न्यूक्लियर प्लांट को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले ही लेक्चर में वी विल स्टडी द न्यूक्लियर फ्यूजन एज वेल, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।